आप सभी हजरात का मदीना रिलीफ फाउंडेशन के जानिब से ताहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। You all are most welcome on behalf of Medina Relief Foundation. हमारा रब हमसे ये पूछेगा कि उस वक्त तुमने इसके लिए क्या किया। हमारे से सवाल होगा, हमारे से पूछा जाएगा कि ऐसे हाल के अंदर तुमने क्या किया सारे इंसानों को बचाने के लिए। हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी कोशिशें, हमारी मेहनतें, हमारा फिक्र, हमारी प्लानिंग, कोई हालात, कोई तकलीफें अगर आए तो हम सब इसी तरह जो है मिलजुल कर जो है सारी इंसानियत, सारी ह्यूमैनिटी की खिदमत करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आखिर में आप सबसे ये गुजारिश है कि इस कोविड सेंटर को चलाने में अगर हमसे कोई गलती कोताही अगर हो रही है तो आप हम सबको जो है इसको सुधारने के सजेशंस जरूर दें। और and thank you everyone for giving your esteemed presence here. Jazakallah khair. Good afternoon everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮದೀನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು NGO ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ನೆರೆ ಹೊಳೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮದೀನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಹೀರ್ ಭಾಯ್, he had come to my office. ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ we all support them. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ DHO ಮಂಗಳವಾರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. We are doing a human service. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ they are doing. And ಅವರ ಎಕ್ಸ್ MLA ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು ರೋಷೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಅಂಡ್ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ NGOs ಗ್ರೂಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಹಗುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಬರೋ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಕೇರ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ कल आए थे मेरे पास इमरान भाई और संदीप साहब भी आए। बड़ा अच्छा लगा कि मदनी स्कूल वालों ने ये जगह दी बड़ा मिलकर के। ये भी फिक्र जताएंगे कि अब स्कूल शुरू होगी तो फिर आगे क्या होगा। स्कूल शुरू हो गए तो फिर बच्चों को बस में बिठा के कहीं दूसरी स्कूल में पढ़ा के लाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आप चालू रखिए। अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहता है बेशक लेता ही है। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने ये सोचा
खिदमत के लिए आगे आए और अल्लाह आपका काम आसान करे। कहने की बात यह है कि हम आपस में तो दिन में 5 बार, हफ्ते में 1 बार, ज़्यादा तादाद में मिलते ही हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम सबको आपकी जरूरत है, आप जैसों की जरूरत है। मास्क नहीं पहनना कुछ लोगों को ऐसे लगता है, बड़ी बड़े लगता है, स्लीप चढ़ा के चलते हैं बस दिखाने, ऐसे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें शर्माइए मत। आप अपनी खुद की, अपने घर वालों की, अपने अड़ोस पड़ोस वालों की हिफाजत करने की ओर बराबर है। एक इंसान जब घर का बीमार होता है तो उसके पीछे ना सिर्फ उसका घर लेकिन पूरा मोहल्ला परेशान है। सबको आगाह करने की कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी भी अगर लगे कि अपने को तकलीफ है तो इमीडिएटली आपके पास आए या डॉक्टर पास जाए, पूछताछ करें, उस पर आंख में निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आगे चल के जो प्रॉब्लम्स है सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में ये ट्रीटमेंट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। पर 2 दिन पहले बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर बता रहे थे कि जो इनिशियल ट्रीटमेंट जिसका हो जाता है उसका मोर्टेलिटी रेट 2% या 1.5%। हॉस्पिटलाइज जो होम क्वारंटाइन के बाद में होता है उसका मोर्टेलिटी रेट 10% है, और जो वेंटिलेटर के हद तक जाता है उसका मोर्टेलिटी रेट 30 to 40% हो जाता है। मतलब 30-40 लोगों का 100 में के बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम सबको ये समझाया गलियों में, मोहल्लों में, राजेश्वर साहब अपनी टीम को लेकर हर मोहल्ले में पहुंच रहे, हर एरिया में पहुंच रहे, समझाने की किसी में क्या करना है, कैसे रहना है, तकलीफ हुई तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपका इनिशियल इंस्ट्रक्शन है। आप जो तुरंत आने का ट्रीटमेंट देंगे वो फर्स्ट एड है, और फर्स्ट एड हम जानते हैं कि हमेशा जान बचाता है। ये इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो कहते हैं, ये आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। और बाकी कुछ चीजों की जरूरत भी बताई बच्चों ने। ये मदीना फाउंडेशन जब फ्लड के वक्त पे काम किया है, जब आप आज जो काम कर रहा है, आप यकीन मानिए कि सारे के सारे शहर के लोग आपके साथ में स्टार्ट किया जो अंजुमन का हिस्सा है मदीना वहां से स्टार्ट होके इतना अच्छा काम होने लगा कि पूरे जिले में काम हो गया। और एक अच्छी बात है कि गजा में जितने भी एनजीओ हैं, चाहे अंजुमन इस्लाम हो, मदीना फाउंडेशन हो, अल-इकरा हो, शिफा हो, और काफी फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे की फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, और हमेशा ऐसे ही हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। और जब मिलकर काम करते हैं तो हर एक काम तक हम पहुंच सकते हैं। और हर एक इदारे का यही काम हुआ है कि हम खिदमत करें, इसमें किसी की शोहरत हो, किसी की वाह हो, यही देखना है कि हम आखिरियत की टीम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। तो इदारे वाले ने ये नहीं देखा कि ये किस धर्म का है, कौन से मजहब का है, कौन सी जाति का है, कौन सी भाषा बोलता है। जो भी आए, चाहे रिलीफ के टाइम पे वो रिलीफ किए, लॉकडाउन के टाइम पे एक तरह ने, अंजुमन ने, मदीना ने और काफी फाउंडेशन यहाँ पे भी ये नहीं है कि कौन से मदद करें देखना ही है, और ऐसे वक्त पे देखना ही नहीं चाहिए। सर तो अंजुमन 60% सिलेंडर्स, 60% जो सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रिसीवर के बाहर जा रहे हैं वो गैर कौमी जाते हैं। मदीना
फाउंडेशन और अंजुमन वाले सब जमात वाले मिल को करने से पहला तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदू मुसलमान कौन भी रहते उन्होंने आए तो इलाज कर रहे हैं, ये दवा खाना को नहीं, और हमारे डॉक्टर को देखता हूँ कैसो बहुत उनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि तो उनको खर्चा पैसे देते रहे तो भी हमारे डॉक्टर आको फ्री आको चेक कर तो कर रहे हैं, तो उनके वास्ते कितना भी बोले तो कम है। ऐसा ये बेलगाम वाले को ये किस्ती पहला करना था, अब थोड़ा कम हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। अब ये इंशाल्लाह ये वेसो भी बहुत अच्छा है। ये बड़े बड़े डॉक्टर पास जाते हैं, गरीब पास पैसा नहीं रहता, उन्होंने 7 लाख 8 लाख 9 लाख 11 लाख तक भी बिल ले रहे। अब ये तुम्हें बहुत अच्छा करें और पूरा बूटी देख कर को बोले बहुत तुम्हारा 2000 रखें, ये 2000 क्या कमी है, 40,000 लिए तो भी पेशेंट को नहीं मिल रहा आज। ये बहुत बेलगाम वाले का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा चला आप खिदमत लेने का मौका दिए, खिदमत करो सुबह एक हो को खिदमत करे का तो ये दवा खाना डेली से आगे जाता है। अल्लाह का करम है, बीजापुर में भी हमें बनाई कोविड सेंटर 50 बेड का विद 40 ऑक्सीजन बेड शुरू किया 1.5 महीने से, और करीबन 200 पेशेंट कोविड पेशेंट का इलाज हुआ है, अब तक डिस्चार्ज हो गए हैं। तो इसी बुनियाद को लेकर बेलगाम की एक टीम हमारे पास आई थी और हम लोगों ने जो भी हमारी मदद है और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो दिए, उसकी बुनियाद पर आज खुशी हो रही है कि आज ये मदनी स्कूल को कन्वर्ट करके एक कोविड सेंटर बनाया गया है। अल्लाह ताला इसमें खैर डाले और जो भी पेशेंट यहाँ पे आए उसको शिफायत करें, ये हमारी दुआ है। और जो भी मदद होगी फ़ोन के ज़रिए से फिजिशियंस अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। मैं पहले तो बेलगाम के सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे मदनी जो फाउंडेशन है एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने आप में एक जिंदा दिली का सबूत पेश करते हुए एक कोविड सेंटर जो इन्होंने यहाँ पर खोला है। मैं बीजापुर से हमारी जो टीम आई है, शकील सुतार साहब है, मैं हूँ, अलहाज हमीद मुशीफ साहब है और हमारे अबरार दफेदार साहब है, इन सब की जानिब से मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कोविड सेंटर जो खुला हुआ है बेलगाम में, यहाँ पे 2000 रुपये में जो इलाज किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये मदनी फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार उन्हीं को कहा जाता है कि जो ज़िम्मेदारी की दवा पीते हैं, पीने के बाद पूरी कौम की जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदार उसी को कहा जाता है। ये काबिल मुबारकबाद हैं और बेलगाम में इतना बड़ा स्टेप शायद ही दूसरे फाउंडेशन वाले किसी ने भी इस फाउंडेशन के ऐसे फाउंडेशन की पहल नहीं की है। तो मैं यहाँ तमाम बेलगाम के अवाम से जो ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी अगर इस बीमारी से, इस वबा से मुलव्विस हैं तो बराए मेहरबानी आप अपने मकानों में ना बैठकर, किसी किस्म की कोई डरने की बात नहीं है। आप यहाँ आकर अपना इलाज, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाएगा आपको। आज मदीना फाउंडेशन और शहर के तमाम जिम्मेदार जमातों की मदद से मदनी स्कूल में सेंटर तैयार किया गया है। यकीनन हमारे मुल्क का यह अमल इक़दाम काबिल सराहनीय है। इस मौके पर हम तमाम कौम के लोगों से, हमदर्दों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी ताकत, अपना माल और अपनी तमाम तर सलाहियतें बीमारों की मदद के लिए, परेशान हालों की परेशानी दूर करने के लिए आगे आए। यही मौके होते हैं जब इंसानों की मदद की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ऐसे मौक़ों पर हमको देखना चाहता है कि हमने कितनी इंसानियत है और हम इंसानों के लिए कितना काम करना चाहते हैं। मदीना की जानिब से ये इत्तला देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फज़ल व करम से और तमाम शहर के NGOs के ताउन से
आज मदीना कोविड केयर सेंटर बना। इस कोविड केयर सेंटर में इंशाल्लाह ट्रीटमेंट होगा वो माइक्रो और माइल्ड या कुछ हद तक मॉडरेट केसेस का हो सकता है। यहाँ पर हमने ये सोचा है कि 88 तक सैचुरेशन तक हम यहाँ पर पेशेंट्स को एडमिट कराएंगे। असल में मकसद हमारे कोविड केयर सेंटर का बनाने का मकसद ये है कि जो वबा पूरे आलम में फैली है, इससे लोग परेशान हैं, इसमें लोग घबरे हुए हैं, डरे हुए हैं, लोग अपनी बीमारी को इजहार नहीं करना चाह रहे हैं और अजीब और गरीब जो है दहशत का माहौल है। उस माहौल से हम इंशाअल्लाह ये कोशिश पूरी करेंगे कि लोगों को उस माहौल से निकालें। हमारी कोविड केयर सेंटर का मंशा ये है कि हम अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट करें, यानी जैसे ही उसके अंदर कोविड-19 की सिम्टम्स जाहिर होने लगे तो वो घर ना बैठे, घर बैठकर अपने वक्त को जाया ना करे, बल्कि मदीना रिलीफ फाउंडेशन की कोविड केयर सेंटर में एक अलग से ओपीडी का सेक्शन भी किया गया है, जहां पर पेशेंट्स सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आकर ओपीडी सेक्शन में जो है अपनी बीमारी को दिखाकर इलाज करवा सकते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।